Hello and welcome to Roads Untraveled by Ink That Matters, and this is Shireen Ishan, and today we have with us Miss Shabana Rajapkar. She is a cosmetologist, she's a trichologist, she's a makeup expert, and she's an entrepreneur. She's a multifaceted personality, if I can say, and also she is an upcoming politician. She is the vice president of the Mahila Congress. So that is about our guest today. So our guest should be there with us very shortly. Shabana, are you there? Shabana, if you're there, just let me know. This is one thing about going live through Facebook, that after you go live, only then you will be able to tag people, unlike the other apps that you use to go live. So this is one drawback of going live through Facebook. Ms. Shabana, if you're there, let me know. If I would be able to see your message, only then I will be able to invite you for this live. So if you can just send a hi, then I would be able to invite you. Just send me a hi in the comments so that I will know that you are here with me, so that I would be able to invite you for the live session. There's actually one drawback of going live through Facebook, that we are not able to actually invite the guest beforehand, and we are actually able to invite the guest only after we go live. So that is one drawback, so that we won't know that whether the person is there or not unless and until that person responds. So Ms. Shabana, if you're there, just send me a response so that I can join you. I can invite you for the live. If you're there, please respond. Yes, our guest is here. She's actually responded. Right now I am able to see her message. So she will be there with us very shortly. These technical challenges are there everywhere, so which is actually unavoidable when it comes to especially going live. Ms. Shabana is actually there online with us, so let's welcome her. All right. Yes. Hey. Hello. How are you? I'm good, Shireen. How are you? I'm good. I'm good. Finally, we meet. I think there After was some so network. many challenges, Yeah. after so many challenges, we finally meet. Yes, yes. So I was actually I was giving an introduction about you to our audience.
as to what you do and who's the guest that they would be expecting right now. So I've given your introduction. I've told them that you are a multifaceted personality, an entrepreneur, an upcoming politician. You are a cosmetologist, a makeup expert, a lot of things actually. So we will be actually getting to know as to how do you manage all these things together. So that is what this session is gonna be. A very warm welcome, Ms. Shabana, to the show. Thank you. Thank you, Shirin, so much. I'm glad you have invited me on your show, and I'm very pleased to be on your show today. And thank you for some such warm words for me. Honored, honored. Whenever women perform like this, they manage their house home responsibilities also, especially if they are married. They have to manage their husbands, their kids, their in-laws, and then also their passion. If they're an entrepreneur, then all the more responsibility. Office goers have a different kind of challenges. If they're entrepreneur, they have a different kind of challenges, but you kind of manage everything. See, you are an entrepreneur also, you are an upcoming politician also, so you have actually had that there you followed your heart actually everywhere. So that is what I would say, and that is what I liked about you when I thought about inviting you to the show. That is what Because actually following your heart is, yeah. yes, following your heart is very, very important. There are a lot of people who actually give up everything after their marriage, or Exactly. after a certain time they give up. Yes. But then you have been going on following your passion. So if you would talk about following the passion on this show, definitely a lot of women will draw inspiration from you, I'm very, very sure. Yes. So that is why actually I thought you should be there on the show. Thank you so much for So Ms. Shabana, appreciating how me. did you start your career with, like, Uh, how did you start your career? Were you an entrepreneur from before, or were you working somewhere? If you could just throw some light on that. it was a great, like, long journey. From where should I start? Hello, can you hear me now properly? Yeah, yeah, yeah. I can hear you. I can hear you. No So issues. it was actually a very struggling and long journey. I started. It was just as a beautician. I started. It was just like my hobby. एक होता है ना हमको टीनेज में कि चलो मेकअप करना है ये Yes. करना है तो मॉडलिंग Ah, एंड make as a makeup artist it was my just hobby I did for my hobby only I didn't knew कि उस वक्त ये नहीं लगा था कि यहाँ तक हम आएंगे करके it was like just unknowingly हो गया एक छोटा सा हॉबी था शौक था और एज ए आई वाज born and brought up in a Muslim family तो इतना आपको पता है इतना एक्सप्लोज होने देते नहीं है लाइक इतना हमको बाहर घर में ही रहिए आप घर संभालिए ऐसा रहता है तो उस वक्त yes. मेरे डैड बैंक मैनेजर थे और एजुकेटेड पर्सन थे और बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थे तो उनको वो ऐसा था कि मेरी बेटियां कुछ करें तो ही नेवर लाइक उन्होंने हमको कभी रोका नहीं जो भी पूछते थे क्या करना है और अगर हमने इंटरेस्ट दिखाया मुझे ये करना है ओके ठीक है कर दो तो ही वॉज ऑलवेज लाइक सपोर्टिंग पहले से ही हमको मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है तो उसके वजह से मैंने स्टार्ट किया था और तभी तो जस्ट ऐसे एज ए हॉबी जॉब एंड ऑल किया बट एक्चुअल जर्नी स्टार्टेड आफ्टर माई वेडिंग आफ्टर माई मैरिज शादी के बाद देन आई गॉट 2 kids एंड तब ऐसा लगा कि पहले तो 2-3 साल आई वॉज बिजी विथ माई फैमिली रिचुअल्स एंड एवरीथिंग लाइक बच्चे एंड ऑल तो उसके बाद कहीं ना कहीं पॉइंट पे लगा कि इतना टैलेंट अगर है कुछ है हमारे पास तो चलो कुछ हम एक्सप्लोर करें कुछ उसको लेके चले सो आई वॉज लाइक बच्चे थे छोटे तो आई वॉज मुझे ऐसा नहीं था कि उनको छोड़कर भी जाना नहीं था ऐसा था कि उनका भी ख्याल रखना एंड फॉर मी वो वक्त ऐसा होता है ना जब बच्चे आपके छोटे होते हो तो उनका वो पैम्परिंग टाइम होता है उनके लिए उनको पेरेंट्स की स्पेशली मॉम्स की बहुत ज़रूरत होती है तो शुरुआत तो मुझे उसी दौर Yes. में करना था लेकिन मैंने उस वक्त उनको प्रायोरिटी दी कि ये लोग थोड़े सेटल हो जाए बच्चे थोड़े बड़े हो जाए उसके बाद मैं अपना पैशन फॉलो करूंगी पैशनेट तो बहुत पहले से थी मैं अपने प्रोफेशन को लेकर बट उसके लिए बट स्टिल आई डेंट स्टॉप लाइक पीपल से आई एम वेरी अनस्टॉपेबल पर्सन मैं रुकती नहीं हूँ कहीं भी That's a nice thing actually. या मुझे ऐसे लोग बहुत बहुत अच्छे लगते हैं who are unstoppable. वी शुड एक्चुअली Seriously. फॉलो आवर पैशन नो सो तो ही आप आगे Yes, बढ़ोगे अदरवाइज yes, आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे ऐसा सो बट दैट टाइम yes. मैंने सोचा चलो मुझे एटलीस्ट मैं घर पे से घर से स्टार्ट करूँ
सो आई स्टार्टेड घर में ही मैंने छोटा सा अपना एक छोटा सा सलून खोला था उस वक्त। तो मुझे बस देखना था हाउ लाइक मेरा सर्विस कैसा लोगों को अप्रिशिएट होता। एज इन पहले तो मैं जॉब कर चुकी थी, बट जॉब इज जॉब एंड प्रॉपर आप जब अपना खुद का स्टार्ट करते हो, एक छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, लेकिन वो बहुत डिफरेंस हो जाता है दोनों चीज़ों में। सो आई स्टार्टेड, Yes. बट इट वाज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज मेरे छोटी सेकेंड बेबी छोटी थी बहुत उस वक्त। एंड उसके ही नाम से मैंने अपना सलून छोटा सा स्टार्ट किया था, एंड इट वाज वेरी टफ लाइक, बट घर पे था तो इट वाज ओके, मैं उनका भी ध्यान रख पा रही थी। और मैं एंड within a span of time, like my clients and my neighbors and people around me, they were like, आप बहुत अच्छा करते हो, आप यहाँ घर में मत बैठो, आप कुछ बाहर जाके बड़ा करो, आप इसके लिए नहीं हो, आप ये छोटी चीज That's के so लिए। sweet. या दे एक्चुअली ये जो है ना, आवर वर्क स्पीक वॉट एवर वी, Yes. लोग जब हमको अप्रिशिएट करते सामने से, जब हमको उसका अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, तो हमको खुद को लगता है कि यस आई शुड डू समथिंग, आई शुड गो अहेड। सो इट इज कम्प्लीटली ऑन योर टैलेंट। अगर आप में टैलेंट और विल पावर है Yes. तो आप बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में। एक्चुअली बहुत कम लोग मिलते हैं आपको जो आपको इंस्पायर करें या या मोटिवेट करें कि आप कुछ और करो, टच वुड, आई क्योंकि वाज वेरी बहुत सारे ब्लेस्ड। लोग जेलस भी हो सकते हाँ थे, ये सब पर वो लोग आपको मोटिवेट कर रहे थे। दैट इज अ वेरी गुड इट थिंग. इज बिकॉज ऑफ मी, लाइक मेरा नेचर भी ऐसा है। आई एम नेवर बीइंग रूड और समथिंग, लाइक मैं किसी के साथ जल्दी बुरी नहीं होती हूँ। मैं जितना कोशिश करती हूँ सबके साथ अच्छे से ही स्वीटली मैनेज करूँ। एंड प्लस मेरे को मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट मिला। उन्होंने लाइक वट एवर आई सेड, चलो मैं घर पे स्टार्ट करी, सर ओके स्टार्ट, देख कैसे चलता है, चलेगा तो आगे। तो मैंने स्टार्ट किया। 5 years में मुझे वहां पे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। लाइक ये तो ठीक है, इतनी छोटी जगह पे अगर इतना, मुझे छोटा सा मेरा फ्लैट था, उसी में मैंने छोटा सा अपना सैलून सेटअप किया था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स अगर मैं बड़े लेवल पे करूँगी तो डेफिनेटली मैं बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। तो वो एक अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन था कि मुझे करना था। तो बट बच्चे छोटे थे तो आई मैनेज 5 years मैंने वो किया। देन अगेन आई शिफ्टेड हियर इन नवी मुंबई बिकॉज मैं, मेरे हस्बैंड का जॉब का यहाँ था। सो नवी मुंबई में आने के बाद आई वाज लाइक मेरा थर्ड बेबी हो गया। तो बहुत थोड़ा मुझे टाइम ब्रेक लिया मैंने 2 years का। वो अगेन उसको थोड़ा बच्चों को संभालना, पैम्परिंग करना, बट फिर भी मन ऐसा लगता था इतना 5 साल करने के बाद अगेन घर पे बैठ, इट वाज लाइक नहीं, मैं घर पे नहीं बैठने वाली, मुझे कुछ करना है। सो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद देन मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। देन आई अगेन स्टार्टेड स्पीकिंग टू माय हस्बैंड कि चलो यहाँ पे ये एरिया अच्छा है, यहाँ पे मेरा सलून अच्छा चल। सो ही वाज वेरी सपोर्टिव। पहले तो उन्होंने मना किए, बच्चे हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रायोरिटी है कभी भी आपके फैमिली और बच्चे होना चाहिए। सो आई प्रॉमिस्ड हिम कि मैं दोनों मैनेज करूंगी, आई विल डू इट। सो ही वाज लाइक ओके, अगर कर सकते हो तो गो अहेड। तो बट मैंने वहाँ पे जो मैंने कोर्स किया था वो बेसिक था। मुझे लगा अगर बड़े लेवल पे एक प्रॉपर प्रोफेशनल सलून एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे करना है तो मुझे एक अच्छा उसके लिए एक क्या बोलते हैं, डिप्लोमा प्रॉपर मुझे चाहिए। तो इसलिए मैंने इंटरनेशनली ग्रेजुएट होने का डिसीजन, मैंने वो सिडिस्को इज अ, यू कैन से दिस सर्टिफिकेट हियर, दिस इज सिडिस्को Yes, I इंटरनेशनल। can. एंड ये बहुत टफ एग्जाम होता है उसका, ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे सबसे बड़ा ये सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन है ये। तो उसके लिए आई हैव टू पुट माय the youngest son into the daycare and I have to rush to Andheri. From there I have to like 2 hours का 4 hours का दिन का मेरा ट्रैवल होता था अप डाउन का। 6 months क्योंकि मैं आई वॉज ऑलरेडी इन टू ब्यूटी, सो आई जस्ट डिड अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो वो करने के बाद आई पास्ड विथ कलर्स, अच्छे से मैंने सब किया। और बहुत अच्छा मुझे लगा कि इतना उसमें पूरा, That's wonderful इट actually. इज कम्प्लीटली लाइक, आप एक्चुअली योर पैशन हैज टेकन यू प्लेसेस. इतना सारा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था आपके पास, ऐसा था कि छोटे करना बच्चे भी है। थे, इवन देन यू मैनेज्ड. या ऐसा दिल में तो था दैट्स कि एक्चुअली अ करना वेरी है, गुड लेकिन थिंग. आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ माई किड्स। लाइक मुझे ऐसा था कि उनको मैं ऐसे छोड़ के तो कुछ नहीं। एंड उस वक्त पे माई फैमिली वॉज ऑल्सो, मेरी मॉम दुबई में थे एंड मेरे इन लॉज भी थोड़े गाँव में थे। तो आई वॉज, मतलब मैं अकेली थी, बट आई थॉट, मुझे लगा कि ये टफ होगा। बट मैंने बोला नहीं, मैंने बोला वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। तो आप अगर करना Yes. चाहो तो वो आपका प्लान्स अपने आप सब सेटअप होते जाता है और अपने आप आगे बढ़ते हो। वो कोर्स करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना सैलून, प्रॉपर प्रोफेशनल सैलून, दैट वाज अ बिग बिग सक्सेस, बिग लाइक सेटिस्फैक्टरी फॉर मी आल्सो कि मैंने कुछ Yes. शुरुआत किया है, अपने दम पे मैंने किया। तो वो करने के बाद इट वाज अगेन अ बिग चैलेंज बिकॉज
बिजनेस इज नॉट इजी। जो मैं घर पे कर रही थी Yes, और it's जो not मैंने easy. प्रॉपर प्रोफेशनली जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला what business is, what entrepreneurship is. तो कंप्लीट मैनेजमेंट आपको देखना पड़ता है, स्टाफ का, क्लाइंट्स का, देन प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, हर चीज लाइक घर का पूरा आपको सेटअप करके देन आपको यहाँ, एंड फुल डे आई यूज्ड टू स्टैंड एंड वर्क। इट वाज अ वेरी टायरिंग, लाइक 2 years आई वाज बैंग ऑन इनटू बिजनेस। बोलते ना एक जुनून, जैसे दिमाग में एक जुनून जैसा आ गया था कि, क्योंकि इट वाज लाइक हस्बैंड का ऐसा था कि अगर नहीं कर पाएगी तो 2 साल में बंद कर देगी। तो वो बंद वाला वर्ड मुझे हमेशा डरा देता था, नहीं नहीं बंद तो नहीं करना है। तो कैसे भी मुझे आगे जाना था, तो मुझे वो उसका लॉस वाले पार्ट को नहीं देखना था, मुझे उसको सक्सेस के इस पे ही देखना था। सो मैंने अपना गोल्स सेटअप करके सब करके मैंने बराबर प्लान आउट करके मैंने किया कि इतना टाइम घर पे देना, इतना टाइम, तो बैलेंस करके एवरीथिंग करके I did it very well, और within 3 years my business was like full fledged, बहुत अच्छा चलने लगा था। touchwood by Allah's grace, alhamdulillah I am blessed कि बहुत अल्लाह ने भी बहुत साथ दिया है। एंड वो पूरा लाइक ये मेरा बिजनेस का स्टार्टिंग लाइक जर्नी था कि फर्स्ट स्टेप था। आपने एक्चुअली इतना मेहनत किया है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू गेट वॉट एवर यू राइटली डिजर्व. So that is what you have actually got, I think, because by hearing your actually the journey, how you started your parlor and how you started your career in the beauty industry, I am actually thoroughly inspired right now. थैंक यू सो मच। बिकॉज इतने सारे हर्डल्स एक्चुअली आपके पास आते थे और आपके पास इतने सारे रीजंस भी थे दैट यू कैन इजिली गिव अप, यस and take a soft spot and sit at home. Nobody is going to ask you. Your husband also told you that not to do it if yeah you are not able to do it. आप वो भी चुन सकती थी, yes but you chose the toughest part, and you took a hard decision, and you came out flying with flying colors also, which is actually very very commendable, yeah thank if you you so would much। ask me. वो कैसा होता है, हमको अंदर से एक्चुअली हमारे अंदर रहता है, तो हम अपने आप उसका व्हाट इज दैट कि अल्लाह अल्लाह ताला हमको रास्ते दिखाते जाता है, ऐसा होता है। अगर अल्लाह भी जानता है कि Yes. सच्चाई से ये ट्रूली एक पर्सन करना चाहता है, तो हमारे रास्ते खुद ब खुद। प्रॉब्लम्स बहुत आई, बहुत सारा मुझे स्टाफ इश्यूज और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी फेस करने पड़े थे, जो बिजनेस में मोस्टली होते हैं। एंड कैसे होता है, इट इज इजियर फॉर मैन, लाइक उनको वो सब हैंडल टैकल कर सकते हैं, बट फॉर द वुमेन दिस इज नॉट इजी। ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट एट ऑल इजी। आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, कभी कभी रात में उठ के Yes. आई यूज्ड टू सिट और सोचती थी मैं, मतलब इट वाज वेरी टफ। अभी जब मुझे वो Yes. जर्नी याद आती है तो ऐसा लगता है कि आई हैव गॉन थ्रू सो मच, बिकॉज Becoming an entrepreneur is never फ्रैंकली easy. मैनी वुमेन ना दे गिव अप बिकॉज ऑफ दिस रीजन, नहीं कर पाते Yes, बिकॉज they एक do, they do. स्ट्रेस ऑलरेडी होता है फैमिली का, बच्चे का, एंड देन ये स्ट्रेस नहीं ले पाते, इसलिए मैनी मैनी वुमेन दे गिव अप। बट माय सजेशन, माय दिस, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा स्ट्रांग होके अगर हम चलते हैं तो हम बुरे से बुरे मुश्किल से निकल जाते हैं, ऐसा है। मैंने भी बहुत सारे हर्डल्स फेस किए हैं बेशक, बट सक्सेसफुल रही हूँ मैं, टचवुड अल्लाह के ग्रेस से बहुत। Your determination actually has taken you places, if you would ask me. आप determined थे, आप clear थे आपके thoughts में कि आपको क्या चाहिए था life से, what you want to achieve and what you want to become. So that has actually taken you places, definitely, I would say. And that is what actually every woman should have. Yes. People who are actually watching with us right now, and people who will be watching this episode later on our YouTube channel of Ink That Matters. So definitely this is the lesson that you should actually take back home through from Miss Shabana, that determination has to be there. Whatever work you do, whether you're an entrepreneur or whether you're a homemaker or whether you're an office goer, that determination has to be there as to what you want in life. So that will actually take you places. She is actually Miss Shabana, actually what you're doing is very very commendable. People jab aapko dekhenge so definitely they'll say, okay, she's successful, she's got her own business, so what is there, no big deal. Yeah, so people she's got her business set up and everything. So how did she actually start? Yeah, So that is was what difficult. matters. Yeah, Yes, वो कोई नहीं सोचता कि शुरुआत कैसे हुई थी.
अभी जो सक्सेस है वही सब लोग को दिखता है। Yeah. कैसे शुरुआत हुई थी वो किसी को वो नहीं जर्नी जानना है या एग्जैक्टली, किसी को नहीं देखना वो है। जर्नी यस, जो गुजरती सब है लोग it सोचते was हैं कि अभी जैसा है आपका वैसे ही आपने शुरुआत भी किया no होगा। no दैट it इज was व्हाट very पीपल tough थिंक, journey, जनरली। it was very tough, यस, not easy. दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। इन फैक्ट, मोर देन टफ जर्नी, आई वुड कॉल इट एन इंस्पायरिंग जर्नी। Thank you so much. तो शबाना, आपने आपके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस आपने सेटअप कर दिया था, आपका ब्यूटी इंडस्ट्री में वेलकम हो गया था, तो उसके बाद में आपने मॉडलिंग इंडस्ट्री में कैसे एक्चुअली यू वेंट, हाउ डिड यू वेंट ऑन टू विन अ पेजेंट इन फैक्ट, सो हाउ डिड दैट Means ट्रांसफॉर्मेशन हैपन? अगेन द सेम थिंग लाइक एक पॉइंट आया कि एक लाइफ में एक पॉइंट आया, जैसे मैंने आपको बोला 5 इयर्स मैंने घर पे किया, फिर मैंने यहाँ पे एज ए प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस सेटअप करने के बाद आई थिंक 5 to 6 years 7 years मैंने यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यूस चलाया। उसके बाद एक टाइम के बाद आई वाज अ बिट टायर्ड इतना काम किया कि अब उसके बाद ऐसा लगा कि चलो काम तो कर रहे बट खुद के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। ऐसा एक एक पॉइंट आता है, आई थिंक एवरी वुमन विल रिलेट दिस विद मी, बिकॉज एक पॉइंट आता है लाइफ में कि आप कर करके थक जाते हो और आपको ऐसे समझ में आता है कि अरे इतना करके मतलब हमको अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा होता है, यस, मैंने बहुत सारा एग्जैक्टली, कि एक पॉइंट, आई फील यू। हाँ दैट वाज द पॉइंट कि मुझे लगा कि अब मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है। मैंने अभी फैमिली के लिए बाकी लोगों के लिए तो बहुत किया, मुझे अपने लिए करना है। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि मैं ऐसे जस्ट सोच ही रही थी, मेरे माइंड में ये सब चल रहा था, तो मेरी वन ऑफ माय फ्रेंड शी जस्ट सेंड मी मिसेस नवी मुंबई पेजेंट का एक उन्होंने मुझे वो लिंक शेयर किया कि पेजेंट शो है। तो आई वाज लाइक ये एज में पेजेंट, आई वाज लाइक वेरी थोड़ा मैं ये हो गई थी, ये एज में क्या पेजेंट, तो बच्चे हमारे बड़े हो गए, थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा। बट मैंने देखा इट वाज मिसेस पेजेंट, लाइक द टाइटल वाज फॉर मिसेस नवी मुंबई। यस, So I was like कि चलो ऐसा, I was like completely distracted with the whole world, like business and घर, यही था। एंड मैं सोशल लाइफ भी नहीं थी मेरी, और क्योंकि टाइम ही नहीं था, टाइम बिल्कुल नहीं था कि हम सोशलाइज करें, क्योंकि होता है ना बिजनेस सेट करने के लिए आपको पूरा टाइम बिजनेस को देना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। और मैंने एक के बाद दूसरा यस, ब्रांच भी डाला था, बोला ना वो ऐसा लगा कि ओके, चलो उधर से साइड में थोड़ा मेरा वहां से थोड़ा मेरे को थोड़ा प्रॉफिट आएगा, ये आएगा। आई वाज जस्ट लर्निंग कि करके देखती हूँ, एंड वेर एवर आई स्टूड आई लाइक आई वाज सक्सेसफुल, मेरे को उसमें अच्छा ये मिला ही। तो उसके बाद आई वाज लाइक कि चलो अभी ये है मिसेस लेवल का है तो अपना नाम का करना है, मुझे थोड़ा अभी अपने लिए भी करना है। तो मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने उसका ऑडिशंस दिया एंड मैं सेलेक्ट हो गई थी। माय हस्बैंड वाज, उनका भी तभी भी मुझे परमिशन, फर्स्ट ही वाज लाइक नहीं अभी क्या कर, ही वाज लाइक इतना तो पता था यू आर सो लाइक ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एंड आपकी पर्सनालिटी अच्छी, तो तेरे को तो आंख बंद करके तो जीत जाएगी, तू ऑलरेडी विनर है, तू क्यों जा रही है। दैट्स सो स्वीट। बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे बताना है, दुनिया को बताना है, मुझे कुछ करना है। तो ये वाज ओके गो। तभी लेकिन थोड़ा कुछ ये बिजनेस का भी फाइनेंशियल भी थोड़ा ये चल रहा था, बहुत सारा स्ट्रेस था, तो थोड़ा डी स्ट्रेस होना जरूरी था। तो आई विल लाइक मैं सबको यही बोलना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम सबको आता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। आई हैव वॉच वीडियोस, इवन आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग। मैं भी बहुत सारा, मैंने डिप्रेशन का टाइम भी मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे उसमें से भी निकलना था कि अब मुझे कुछ अपने लिए करना है, अपने आप अपना नाम करना है। तो दिस वाज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लाइक अपने आप बोले ना, एक अप्रोच हुआ मुझे कि इसमें आप आ जाओ करके। तो मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई करके देखते हैं, लेट मी टेक इट। So I gave the audition, I was selected, but unfortunately I didn't win that pageant. I don't know what was the reason, like some due to some maybe I was lacking something, but वो journey that was very like fantastic journey, छोटा सा ही वो pageant था। That's the starting point Yeah, actually. but there I realized that after being with so many women entrepreneurs there, like pageant is very like uh, women from every class, every field, they come there, and you are introduced to so many like talented people there. So वहाँ मुझे that was my actually learning time, like मैंने बहुत वहाँ पे सीखा कि ऐसा भी है, इतने सारे लोग हैं। और मैंने देखा है हर
हर वुमेन की कुछ ना कुछ अपने आप में एक स्टोरी रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर के करके यहाँ तक। तो इट वाज रियली वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। मैं खुद गुजर चुकी थी, लेकिन जब हम दूसरों का देखते हैं ना, तब वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है कि हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, और हमको भी एक इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम भी। जब आजकल तो हर लेडी कुछ ना कुछ सफर करके करके आगे बढ़ रही है, तो ये तो अगर हम भी कुछ बुरे चीजों से गुजरे हैं तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो जस्ट वहां मैंने सीखा कि लेट गो करना सीखा, कि सबको बाजू में करके आपको आगे निकलते जाना है। तो वहां से आई डिडंट विन दैट पेजेंट, बट तो थोड़ा गुस्सा आ गया था कि मैं कैसे हार सकती हूँ। मैं कैसे हार गई, मुझे तो जीतना चाहिए था। तो बोला ना, एक जिद्दी है, एक वो अनस्टॉपेबल अंदर है, अंदर थोड़ा क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलो उसको, व्हाटएवर इट इज पॉजिटिव एटीट्यूड एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं हार नहीं सकती, मुझे जीतना है। तो at the same time, one of my friend, she participated into an international pageant, and she won and came from there. She attended that in Singapore. So she saw me here, so she was like, अरे तू ये छोटा मोटा पेजेंट क्यों करती है, तू इतनी टैलेंटेड है, तूने इतना अच्छा किया, you go for a big one, go for an international platform. तो मैंने बोला नो, दैट इज इम्पॉसिबल। मुझे ऐसा था कि ये तो होने ही नहीं वाला। मतलब आई हैव सीन फेसेस इन माय लाइफ जहाँ पे जो नहीं होने वाली चीज भी मैंने कर दी है। ऐसा मैंने फेसेस भी पहले ऐसा लगा था कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं, बट अगर आप आज मुझे देख रहे होंगे कि वो पेजेंट अटेंड करके, मतलब इट वाज नॉट इजी बिकॉज इंटरनेशनली आउट ऑफ इंडिया आपको जाना है, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट आउट ऑफ इंडिया। फर्स्ट फ्लाइट मैंने वो अपने दम पे, अपने इस पे मैंने करके, उसमें से भी आई won that pageant and as a runner up, and I came, उसमें भी हस्बैंड थोड़ा ये हो रहे थे, नहीं बाहर की कंट्री है, it was like not, उसमें थोड़ा उन्होंने मना किया था, बट मुझे हार नहीं लेनी थी। मैंने बोला नहीं, मुझे करना है। डिसाइड हो गया, अगर तेरे मन में है तो एक है कि फैमिली सपोर्ट, और हस्बैंड आपके बाजू में अगर खड़े हैं, वो इज लाइक माय बैकबोन, लाइक वो हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट के साथ खड़े, वेरी ट्रू, बिकॉज ये जहाँ भी जो भी आगे बढ़ेगी, इसका कुछ इसको अच्छा फायदा है ही। बिकॉज जितना वो मुझे जानते थे, लाइक ये गलत इसमें तो ये जाएगी नहीं, ये तो इतनी स्ट्रॉन्ग है ये पहले से। लाइक आई वाज लाइक, मुझे पहले से लोग बोलते थे आप सोशल वर्क में जाओ, इसमें जाओ तो किसको भी मार के आ जाओगे, इतनी मतलब एटीट्यूड मेरा वैसे ही था शुरू से। तो ही वाज लाइक ये तो कर लेगी अच्छा। तो फाइनली ही गिव मी परमिशन, so I went Dubai, I attended that pageant. That was again a very very fabulous journey. बहुत हर तरह के, हर जगह से काफ़ी सारे लेडीज वहाँ पे आए, एंड they were all my competitors, and all became such good friend of mine. और बहुत से लोगों की सारी स्टोरीज एंड एवरीथिंग सबसे मिली। इतना लोगों से मिलना जुलना हुआ, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला लाइफ में। बस वो जो लर्निंग जर्नी थी ना, उसी के वजह से आज मैं बढ़ती गई आगे, क्योंकि आप सीखोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। अदरवाइज अगर आप उसमें से जजमेंट करते रहोगे, लोगों को ये अब्यूज करोगे, जज करोगे, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो मैंने काफ़ी चीज़ें लोगों से सीखी, लोगों से काफ़ी कुछ सीखा है मैंने मिलके सबसे। तो वहां से मैं विन करके आई। तो उसके बाद देन अगेन द सेकंड स्टेप स्टार्टेड, लाइक सेकंड जर्नी, सेकंड बिजनेस, लाइक एंटरप्रेन्योर, ये सॉरी पेजेंट बिजनेस जो है, इवेंट लाइन में आई वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड मेनी पीपल लाइक सब जानने लगे मुझे। तो ये एक जर्नी बहुत खूबसूरत जर्नी थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट मेरा जो ड्रीम था कि मुझे अपनी पहचान अलग से बनानी है, वो मैंने बना ली है इस फील्ड में आके। डेफिनेटली आपने बनाई है। एक्चुअली द फर्स्ट पेजेंट दैट यू वेंट, आपने बोला कि आपने विन नहीं किया था, आप एक्चुअली इजीली डीमोटिवेट भी हो सकते थे कि मुझे आगे ऐसे कुछ नहीं करना था, बट यू डिडंट गेट डीमोटिवेटेड। दो आपने कहा कि थोड़ा गुस्सा आया था, बट फिर भी आप डीमोटिवेट नहीं हुए थे। गुस्सा आना इट्स अ नेचुरल इमोशन, बट देन आप डीमोटिवेट नहीं हुए थे। यू एक्चुअली वेंट ऑन टू डू समथिंग मच बिगर, which is actually a big achievement, definitely, and that is much commendable for actually a woman who is actually, you know, got a family back home and who has that responsibility also. तो actually आपके husband को actually congratulate करना चाहिए, जो who actually supports you in every decision of yours. Very happy to listen that.
Yeah, so definitely उनको actually ऐसे convey my regards उनको to him. अप्रिसिएशन मिलता रहता है वैसे ही मेरी वजह से. Convey my regards to him definitely. Yes, Actually वो actually जब सही हो जाओ ना तो I think women can actually do wonders yes. in life. फैमिली That is सपोर्ट what I नहीं think. Your मिलता है life तो partner has to be फैमिली right. सपोर्ट अगर एक वुमन को नहीं मिलता है तो शी कैन नेवर गो अहेड विथ हर लाइफ, नेवर. उसको Yes. मोटिवेट करने वाली भी फैमिली होती है, डीमोटिवेट करने वाली भी फैमिली ही होती है. अगर उसमें कितना Yes. भी टैलेंट भरा है बट अगर उसको फैमिली से ही अगर मना कर दिए या नहीं आगे बढ़ तो शी इज लाइक हेल्पलेस, शी कैन नॉट डू. बट स्टिल आई हैव सीन Yes. स्टिल पीपल दे सारे बॉन्ड्स तोड़ के भी कुछ लेडीज मैं ऐसे जानती हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स है जो सारे बॉन्ड्स तोड़ के वो लोग ने अपने प्रोफेशन अपने पैशन को फॉलो किया, बेशक बच्चों को भी हैंडल करके किया है एंड दे वर सक्सेसफुल. तो ये बस एक मौका देना चाहिए, एक Yes. औरत को उसका सम्मान और उसको एक मौका देना चाहिए तो वो शी कैन डू वंडर्स, यू नो, ऐसा होता है. Yes. तो वो चीज Actually आपके she trusted your decisions. That is more important actually. उन्होंने it is actually actually judge not, नहीं किया आपके it is decisions. on us also, like हमारे अंदर भी वो वैसे गुण रहना चाहिए कि हम उनको कन्विंस कर सके. अगर हम ही कुछ कहीं गलत कुछ गलत चीजों Yes. में हम ही उलझ गए और कुछ गलत चीजें हो गई तो फिर वो कभी हमको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे. तो सबसे पहले तो हमको हमारे गोल्स सेट रहना चाहिए कि मुझे ये करना है तो यही करना है. कभी Yes. कभी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट, हम भटक जाते हैं, हमको जाना कहीं होता है, हम चले कहीं जाते हैं. तो इस वजह से फैमिली भी अगर आपको देखते हैं कौन से प्रोफेशन में हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे किन लोगों के साथ हो, तो वो मैं बहुत चूजी हूँ ये सब चीज़ों को लेके. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे लोगों के साथ ही जुड़ूँ और अच्छे लोगों के साथ ही. तो मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली भी, जो मेरे भाई लोग भी मुझे जानते हैं, तो उनको पता है कि ये कोई ऐसा, शी इज़ वेरी सेंसिबल इनफ कि ये कुछ राइट डिसीजंस ही लेगी. तो आपके ऊपर है वो कम्प्लीटली. अगर आप प्रूफ कर दो अपने आप को सही बन के तो फिर नहीं करने वाली फैमिली भी आपको सपोर्ट, यू प्रूव देम, यू शो देम कि यू हैव दैट थिंग, दैट स्पार्क यू हैव. अनलेस यू विल नॉट शो देम, आपको वो भी घर मैनेज करके सब कुछ करना है, ऐसे नहीं कि घर आपने छोड़ दिया. तो इट इज़ नॉट ईजी, आई नो, हर कोई नहीं कर पाता है. बट आपको अगर एक है ना माइंड में आपको ये करना है, इस तरफ जाना है, तो आप बांध लो एक आप अपने आप को कि मुझे करना ही है कैसे भी. तो दैट वे यू गो अहेड एंड यू विन दैट थिंग. ऐसा होता है. Definitely. It is very क्लियर गोल्स होना बहुत जरूरी है. and it is not. अगर आप क्लियर गोल्स रख के जाओगे तो एनीबडी विल सपोर्ट यू और एनीबडी विल एक्चुअली वो लोग देख पाएंगे एक्चुअली कि आप क्या चाहते हो और डेफिनेटली दिस इज व्हाट यू वांट एंड दे विल ऑटोमेटिकली सपोर्ट यू. And when people see सो क्लियर गोल्स होना जरूरी होता है. people, लोग जब देखते हैं हमारा, लोग भी हमको स्टडी करते हैं, वो भी देखते हैं कि ये बिजनेस माइंडेड है तो अपने आप वो बिजनेस के लिए जुड़ते हैं. तो उस तरह से इट वर्क्स, यू नो. तो मेरा जब पेजेंट विन करके मैं आई थी तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर है बहुत इंटरेस्ट थे मेरे बिजनेस एथिक्स से या काम से. तो ही वाज लाइक आप मुंबई में हमारे लिए कोऑर्डिनेट करो. और पहले तो उन्होंने हमको एज ए ऑडिशंस वगैरह करने के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया. बाद में फर्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में उन्होंने मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया इसका, माइलस्टोन पेजेंट का, कि आप वहाँ पे मुंबई में आप ऑडिशंस करके वहाँ के लेडीज को सेलेक्ट करके हम इंटरनेशनली कर. तो सेकेंड पेजेंट वही माइलस्टोन का मलेशिया में हुआ था. तो वहाँ पे भी मुझे एज गेस्ट इनवाइट किया गया था बिकॉज आई हेल्प देम इन देयर बिजनेस. आई कोऑर्डिनेटेड विद देम एंड दे वर वेरी हैप्पी विद माय वर्क. दे अपलॉडेड लॉट्स. एंड वहाँ पे मलेशिया में मुझे ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड मिला था, ये वाला. वाओ, दैट्स ग्रेट. दिस इज कंग्रेचुलेशंस. तो वहाँ जाके तो मैं दुबई जाने के लिए भी, सोचिए ना आप, दुबई जाने के लिए भी आई वाज थिंकिंग कि मैं करूँगी कि नहीं. बट नेक्स्ट ईयर आई वेंट टू मलेशिया एंड आई वॉन दिस अवार्ड एंड केम. सो इट वाज लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक. मैं ऐसा श्योर नहीं थी कि मैं, इट वाज, बोलिए ना, बाय गॉड्स ग्रेस. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत मेरे ऊपर एहसान है, बहुत रहम है, बहुत अल्लाह ने मेरे को साथ दिया है. अपने आप को रास्ते बनते गए. वो एक there is some शायरी के हम चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया. तो इट इज ऐसे कुछ हुआ मेरे साथ. तो इट वाज अ वेरी फैबुलस जर्नी ओवरऑल. टुडे आई एम वेरी हैप्पी
and content with my life. पहले शुरू में मुझे थोड़ा financial था, सब कुछ issues था, but alhamdulillah, Allah has blessed me with everything. Alhamdulillah. तो अभी आप स्टिल एज अ मॉडल, एज अ गेस्ट, अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो लाइक योर मॉडलिंग करियर आल्सो? आर यू कंटिन्यूइंग इट अलोंग विथ योर एंटरप्रेन्योर जर्नी? मॉडलिंग करियर लाइक मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री से मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, एंड पेजेंट एंड ब्यूटी इज ऑलवेज इंटर रिलेटेड लाइक, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा मेकअप का बैचेस होता है, स्टूडेंट्स मैं सिखाती हूँ, मेकअप के कोर्सेस लेती हूँ, तो मेरा स्टूडेंट्स का बैच होता है जो, तो जब पेजेंट्स यहाँ पे पेजेंट्स जो होने लगे, दे केम टू नो दैट आई एम फ्रॉम ब्यूटी फील्ड एंड ऑल, सो मुझे लोग अप्रोच करने लगे फॉर द मेकअप पार्टनर for the pageants because I was already a crown winner. I already know this journey. So मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे काम मिले उसके लिए, तो मैंने मेकअप एज ए मेकअप पार्टनर्स काम किया, उसके मुझे अवार्ड्स मिले, एंड देन एज गेस्ट मुझे बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ के पेजेंट शोज में मुझे गेस्ट करके बुलाया गया, मुझे शोज ऑफर के लिए बुलाया गया। तो ये आप जब तक आप अपने आप को प्रूव करके विन करके नहीं दिखाते हो, तब तक लोग भी आपके पास नहीं आएंगे, ऐसा होता है। लोग आपको तभी आपके पास आते हैं, आपके काम को सराहते हैं, जब आप प्रूव करोगे कि आपका काम काबिल तारीफ था, तभी आप लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो उसके बाद ये पेजेंट के बाद, ये सब चीज़ों के बाद, ये मेरा काम कनेक्ट, मैंने अपने काम को उसके साथ कनेक्ट किया। अगेन एज यू नो, आई एम मोर पैशनेट टुवर्ड्स माई वर्क। मेरे लिए मेरा बिजनेस काम, जिस बिजनेस के लिए इतना साल किया, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। लाइक दिस वाज आल्सो अ साइड, लाइक इट वाज अ pageant and entertainment is a like entertaining journey एक तरफ, so I was like enjoying this also and doing my work also, so both were going hand to hand. and अभी ये लॉकडाउन होने के वजह से थोड़ा अप डाउन हो रहा है. Yes. It's not on the mark, business is little going down, but क्या करें. Yeah. But tough time है सबके लिए, people are suffering. I will just tell everybody to This also will pass actually. क्योंकि टफ टाइम सबको, सभी को है एक्चुअली, सारे एंटरप्रेन्योर्स को है, स्पेशली ऑफिस गोर्स तो इट इज ओके, उनको सैलरी मिल जाती है, स्टिल बट देन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इट्स अ वेरी टफ टाइम। भी उनका कट ऑफ करके दे रहे, तो इट इज एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है उनके लिए भी, बट व्हाटएवर, बिजनेस वालों, बिजनेस क्लास एंड मिडिल क्लास आर सफरिंग अ लॉट, क्योंकि बिल्कुल पैसा नहीं है ना, कंप्लीटली शट डाउन है। तो मुझे भी काफी प्रॉब्लम हो रहा था, बट आई एम लाइक बाय अल्लाह's ग्रेस, लाइक बस खा रहे हैं, शांति से घर में है, जिंदा है बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में. So I will just suggest everybody to keep washing your hands. Very true. Please wear masks. मैं खुद सोशल वर्क भी हूँ, मैं पहले से सोशल वर्क कर रही हूँ, हमारे 2 NGO से जुड़ी हूँ, वहाँ जो मैसेजेस आते हैं, जो हालात है, इट्स कम्प्लीटली लाइक बहुत खराब हालत है. ऐसे सुबह मैसेज आता है कि मैम हमको हमारी मम्मी बीमार है, ICU बेड अरेंज करके दो. आधा घंटा भी नहीं लगता है हमको अरेंज करने के लिए, वैसी न्यूज आती है कि शी इज डेड. लाइक लिटरली you won't believe, last few days back I literally cried. मतलब 2-3 केसेस ऐसा हुआ कि I tried to like उनको एक को रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था, किसी को ICU बेड्स चाहिए था, तो मैं हम लोग we are like coordinating with that team कि कहीं से किसी को हेल्प मिले. बट 2-3 केसेस में ऐसा हो गया, बहुत कोशिश कर रहे थे, काफी लोगों को मिला भी, काफी लोग रिकवर होके घर पे भी आ गए, लेकिन काफी लोग उसमें लाइक बहुत ज्यादा जिनको ब्लड प्रेशर था, वो लोग भी गिव अप, एंड बहुत लोगों का डेथ हुआ. तो वो 2-3 दिन तो बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही थी, तो आई वाज लिटरली, आई क्राइड एंड आई वाज इनटू डिप्रेशन. मुझे वो बर्दाश्त ही नहीं, वो देखना, मतलब ये इतना बुरा दौर है, तो इट वाज रियली लाइक इट्स अ रिस्क. आप प्लीज घर से बाहर मत जाइए, बहुत खराब हालत है, जितना हो सके घर में रहिए प्लीज. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हियर, whoever is on my live, whoever is watching, आप काम, भले से पैसा, देखो पैसा आप 2 दिन कमाने जाओगे और डॉक्टर का बिल उधर फटेगा, वो पैसा आपके हाथ में नहीं आने वाला, बट एटलीस्ट स्टे होम, अपने हेल्थ का आप ध्यान रखिए, ताकि आपकी हेल्थ इज योर हेल्थ इज वेल्थ. आप हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप बहुत पैसा कमा लोगे, आप जिंदा रहोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. सो बट डोंट टेक रिस्क एट दिस टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ. ये बहुत टफ टाइम है सबके लिए, प्लीज फॉलो ऑल द रूल्स एंड नॉर्म्स. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मुझे एक्चुअली आपसे वही पूछना था शबाना जी, हाउ डिड यू एक्चुअली वांटेड टू बिकम अ सोशल एक्टिविस्ट, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड योर हैंड्स फुल
being an entrepreneur, and also associating with the modeling industry because of being a beautician and a makeup expert, then you already had your hands full. So how did you actually thought of becoming a social activist? Activism में आपका interest कैसा था? अगेन द सेम थिंग, जैसे आप अगर आप लाइफ में आप खुद बहुत सारे ड्रॉबैक्स देखे हो आपने लाइफ में, फाइनेंशियल और पर्सनल भी कुछ इश्यूज आपके हैं, तो एक होता है कि अगर जब आप उस दौर से गुजर रहे होते, कुछ भी आपके लाइफ में बुरा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कोई आए मुझे हेल्प करे, कोई एक मैंने देखा है, जैसे डिप्रेशन की भी अगर मैं बात करती हूँ, पीपल सुसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। मैंने वो सब भी मैंने उसको इतना स्टडी किया ये सब चीज़ों पे कि ये क्यों होता है। सो अंदर के अंदर मैं बहुत काइंड हूँ, मेरा दिल बहुत हल्का है, मैं जल्दी से, मेरे को रोना आ जाता है, कुछ भी किसी का सुन लेती हूँ तो मुझे, ऐसे तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो ऐसे हूँ कि मैं किसी से लड़ भी पड़ूँ, लेकिन आई हैव दिस साइड ऑफ माई नेचर ऑल्सो। तो वो चीज़ जो मैंने भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ देखी है कि वो, उसमें से मैं तो निकल गई, लेकिन आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं अगर किसी और को अगर मैं ऐसे सफर करते हुए देखूं या कुछ, तो मैं जरूर उसको हेल्प करने के लिए जाऊँ। तो ये अंदर से अपने आप उसी में से निकला है कि आपको, एंड फॉर सक्सेस, जैसे आप बोलते हो ना हम सक्सेसफुल है, सक्सेस फॉर मी इज लाइक, आप खुद सक्सेसफुल होना इज नॉट सक्सेस। आप खुद सक्सेसफुल हो के आप अगर किसी दूसरे को हेल्प करते हो ऊपर उठने के लिए, या किसी को कोई मजबूर है, कोई बहुत जैसे आपने बोला अभी सोशल एक्टिविटीज में कैसे, तो कोई अगर गरीब है, किसी के पास पैसा, फाइनेंशियल इशू है, किसी के पास, कोई लेडी है जो घर में डोमेस्टिक अब्यूज से गुजर रही है, कुछ भी, तो ये भी सारे इश्यूज है हमारी सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर सोशल वर्क करूंगी और मैं हेल्प करूंगी। ऐसे कुछ कुछ लोगों को तो भी एटलीस्ट, कुछ लोगों को मैं अगर हेल्प भी कर लूँ तो वो भी मेरे लिए, मेरा पार्ट तो मैं कर लूँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर हर हम में से हर कोई अगर ऐसा सोचे कि चलो मैं दो लोगों को तो भी हेल्प करूँ, तो हम पूरे सोसाइटी को मिलके हेल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये मेरे अंदर, मेरे लाइफ जर्नी ने ही मुझे सिखाया कि, और प्लस थोड़ा मेरे पेरेंट्स बहुत ये थे, बहुत गिवर थे, उनके खुद के पास भी कुछ नहीं होता तो वो पहले दूसरों को देते, तो वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था। तो पहले से मुझे था कि मैं सबको देके है, तो आई वाज लाइक, मैं काफ़ी डोनेशन वगैरह करने लग गई मैं एनजीओज में, और तो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग ने मुझे अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कुछ रहता था तो बुलाते थे, तो दैट वे आई वेंट, धीरे धीरे उसमें भी मैं, लोगों ने फिर वहाँ भी मुझे जानने लग गया, एंड दैट जर्नी ओनली ब्रॉट मी टू द पॉलिटिकल लाइन एक्चुअली। वहाँ से होते होते जितने लोग मुझे जानने लगे लाइक यू आर डूइंग सो गुड, तो आप पॉलिटिक्स में एंटर कर लो, ये कर लो, तो दैट वाज अ डिफरेंट पार्ट, लाइक वो बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए। इट वाज नॉट इजी बिकॉज ये दिस लाइन इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड दैट। तो लेकिन एटलीस्ट मुझे Yes. इतना मौका मिला कि मैं सोशल एक्टिविटीज में जाके मैंने कुछ लोगों को हेल्प की, कुछ बच्चों को जो गरीब बच्चे रहते हैं, जो अनाथ बच्चे, उनको मैंने एक्चुअली, मैं, मुझे बोलने अच्छा नहीं लगता है, मैं किसी को ऐसा जो करती हूँ वो बताती नहीं हूँ, बट अभी आप पूछ रहे हो तो मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैंने थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सका मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की। आगे भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे नवाजता रहा, अगर अल्लाह मुझे देता रहा, तो मैं ज़रूर करूँगी। अपने फैमिली में भी काफ़ी मेरे हैं, उनको भी मैं हेल्प करती हूँ, बाहर भी, तो छोटा मोटा मेरा पार्ट है, कोई बड़ी चीज़ मैंने नहीं की है, लेकिन जो छोटी चीज़ है जो मेरे से हो सकती है वो मैं करती हूँ। तो इसलिए लोग, आजकल छोटी हेल्प ही एक्चुअली बहुत आगे जाके बोलती है, बिकॉज दीज डेज इवन अ स्मॉल हेल्प मैटर्स, क्योंकि हेल्प करने के लिए ही लोग नहीं है आजकल, बिकॉज सो मच पीपल आर सफरिंग, सो कोई एक भी केयर कर दें तो डेफिनेटली इट्स अ बिग टुडे थिंग। इट्स वेरी टफ कंडीशन, टुडे नोबडी हैज मनी, यस, आज किसी के पास देने के लिए भी नहीं है, ऐसे हालात हो गए हैं। तो आई डोंट नो, यस, आई होप ऑल दिस सेटल्स सून, बिकॉज it's not an easy thing for everybody, you know. हर कोई, that's why suicides and all this thing happening, no? People are like, यस, people give up, उनको कोई, at least we can talk to someone, at least we can call and talk to our friends, and बोला ना मैंने ऐसा टाइम देखा है कि मैं भी, एक होता है सबकी लाइफ में होता है, हम डिप्रेशन से जब गुजरते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, हमको अकेले रहना अच्छा लगता है, उस वक्त जी, हम खुद नहीं जाते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कोई आके हमसे बात करे, कोई, तो ये चीज होती है। तो मैं कोई भी किसी का मैसेज भी, स्टेटस भी आ गया फ्रेंड का कि शी इज डिप्रेस्ड और शी इज सैड, तो मैं तुरंत कॉल करती हूँ, क्या हुआ तुझे, क्या नहीं। सो प्लीज मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ह्यूमैनिटी कहीं ना
दुनिया में कम होती जा रही है। मैं देख रही हूँ कि लोग अपने Yes. ईगो में और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफस्टाइल के इसमें ह्यूमैनिटी को काफी लोग पीछे छोड़ रहे हैं। तो प्लीज वही तो है, ह्यूमैनिटी इज एवरीथिंग। हम लोग यहाँ पे उसी के लिए आए हैं दुनिया में। तो अगर वो चीज छूट गई तो लाइक थिंग्स आर गॉन, देन कुछ हाथ में नहीं है सर। तो प्लीज जितने लोगों से बन सकेगा प्लीज हेल्प कीजिए एक दूसरे को। कुछ नहीं तो प्यार से बात भी कर ले तो काफी लोगों का मन हल्का हो जाता है, काफी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। सो मेरा नेचर वैसे ही है थोड़ा। मैं सब चीजों को इसलिए मेरे जो वेल विशर्स बहुत है, मेरे फ्रेंड सर्कल टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है। मुझे ब्लेस्ड हूँ, मैं फ्रेंड्स अच्छे मिले। मैं भी वैसी रहती हूँ तो वो भी मेरे साथ वैसे ही रहे। सो ओवरऑल इट्स लाइक गुड। बट अभी जो हालात है उसमें प्लीज एक दूसरे को हेल्प कीजिए सर। That's very nice. That's very nice. आपने actually social activist किसी की मदद करने के लिए या नो टू गिव अ हेल्पिंग हैंड टू पीपल, आपने एक्चुअली सोशल एक्टिविज्म में एक्चुअली कदम रखा. दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग टू नो. और एन एंटरप्रेन्योर, यू नो, a social activist and now an upcoming politician, ये एक्चुअली फेस कैसे आपका शुरू हुआ? Why did you actually wanted to become a politician? एज आई सेड मेरा क्योंकि वो ज्यादातर एक्टिविटीज भी लोग प्लान। पॉलिटिक्स में आने के लिए एक्चुअली वो डरते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट एंड उनके फैमिली से भी कोई नहीं होता है. यूजुअली पॉलिटिक्स में जो आते हैं वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में उनके फैमिली या फ्रेंड्स कोई तो जान पहचान वाले होते हैं. हाउ डिड यू एक्चुअली विदाउट हैविंग एनी बैकग्राउंड ऑफ यू नो बीइंग इनटू पॉलिटिक्स, व्हाई डिड यू थिंक दैट यू शुड एक्चुअली जॉइन पॉलिटिक्स? एज आई सेड कि मेरा कुछ भी मेरे बिजनेस के अलावा जो कुछ भी मेरे दूसरे डिसीजंस हुए हैं वो मैंने किए नहीं। वो ऐसे मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वो खुद चल के आए हैं मेरे पास। तो मैंने वो स्टेप अहेड किया मैंने कि चलो देखते हैं, और मैं आगे बढ़ गई और मैं उसमें से सक्सेसफुल होके ही निकलती गई। तो ये भी पॉलिटिक्स का भी ऐसा मैंने कुछ माइंड में मेरे बिल्कुल आई यूज्ड टू हेट पॉलिटिक्स। आई यूज्ड टू हेट इट यू नो। कहीं पे भी दिमाग में ऐसे नहीं था कि कुछ करूंगी, मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगी या आगे इसमें जाऊंगी। बट अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी। मैंने जैसे बोला अल्लाह ने मुझे नवाजा, इसलिए मैं लोगों को देने करने के काबिल हुई हूँ। तो यही दिमाग में है कि चलो अगर हम बढ़ते हैं लाइफ में तो उसका कहीं ना कहीं उसका कुछ इंटेंशन होता है कि हमको कुछ अच्छा कॉज करना होगा या लाइफ में कुछ अच्छा। तो मैंने वो सोच के पहले तो मुझे ऐसा था, मुझे ऐसा ऑफर आया है पॉलिटिक्स का, मुझे ये पोस्ट का। तो मुझे पहले मैंने काफी सोचा, बहुत सोचा मैंने कि मैं कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट एंड ब्यूटी एंड वो लाइन की हूँ। एंड पॉलिटिक्स इज Yes, वेरी लाइक yes. some kind of people Very push serious wealthy, business. it's this is that. So और बहुत सोची मैंने। बट मैंने एक, मुझे पता है कि मेरा एक बोल्ड साइड भी है। मैं एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग वुमन भी हूँ, वो भी मुझे पता है। एक होता है ना, हमको पता होता है हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है और हम कितनी चीजें Yes, किस तरह से हम टैकल कर सकते हैं। ये आपको अपने आप को आप right. बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकूंगी कुछ। लेकिन ज्वाइन करने का रीजन यही है कि आजकल के जो पॉलिटिकल हालात है आप देख रहे हैं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है और काफी सारी मुझे ऐसा लग रहा है गलत चीजें हो रही है इंडिया में। मैं इंडिया का पॉलिटिक्स और इंडिया के जो चीजें हो रही है उसको जब मैं बाहर के कंट्रीज से कंपेयर कर, मैं दुबई मलेशिया भी जाके आई हूँ तो इतनी वहाँ की कंट्रीज ही अलग है वहाँ। और यहाँ इंडिया क्यों नहीं इतना इम्प्रूव हो रहा है, इंडिया इतना बैकवर्ड क्यों है। तो मैं काफी चीजें रीड करती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ। तो मैंने देखा कि ये चीज इंडिया कुछ तो लैक कर रहा है और वो ये है। और देखा जाएगा तो यहाँ के साइंटिस्ट, यूएसए वाले यहाँ के साइंटिस्ट को बुलाते हैं। एजुकेशन में इंडिया इज नॉट बैक बिहाइंड, एजुकेशन में इंडिया इज ऑन द टॉप। तो जब इतना मेन तो नॉलेज एंड एजुकेशन ही होता है। अगर इतना होने के बाद अगर पॉलिटिकली इंडिया स्ट्रांग नहीं हो रहा है या कुछ तो है जिसकी वजह से इंडिया आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या है। तो somewhere I felt कि Indian politics really need good educated people. So as far as of it is my like a point of view कि मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। जिनको जो फील्ड में, जो पार्टीज में जिनको इंटरेस्ट लगता है दे कैन ज्वाइन। लेकिन इंटेंशन ये है कि हमको ये हालात जो पहले वाला जो चलता आ रहा है, लाइक
इफ यू गो इन द पास्ट, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल फॉलो किया, वो डिवाइड करके चले गए, एक वो उन्होंने वो मार के चले गए, इंडिया पाकिस्तान एंड ऑल। आज उसको वही चीज को उसी को खरोच के, वही जख्म को खरोच के उसी को रिपीटेड। सो आई थिंक दिस ऑल शुड बी स्टॉप नाउ। वो जो हो गया वो हो गया। इट हैज टू बी अ न्यू फेस नाउ। ये रिपीटेडली, एंड उसके बाद आज जो हो रहा है वो तो उससे भी भयंकर हो रहा है। आज तो ज्यादा रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो माइनॉरिटी है उनको हटाने की बातें हो रही है। तो कहीं ना कहीं लाइक मैं देख रही हूँ कि लोगों में नहीं है, लोग तो मिलके रहना पसंद करते हैं। हमारे हिंदू फ्रेंड्स है, अभी हम लोग भी देखो, इवन आई एम फ्रॉम I have done in so many fields. I am working with so many people, so many my Hindu friends are, they are so such good people. बहुत अच्छे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे neighbors है, everybody like लोग आपस में एक दूसरे से बुरे नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकली करवाया जाता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि बंद होना चाहिए। अभी के दौर में ये 3-4 सालों में ज्यादा हो रहा है, पहले भी था ये सब लेकिन इतना नहीं था। कांग्रेस के रहते में भी होता था। आई वोंट टेक एनी पार्टीज प्लेटफॉर्म, बट मैं एक जनरल वो चीज बताना चाह रही हूँ कि पहले भी होता था, लेकिन आज जो हो रहा है वो सच में बहुत बुरा हो रहा है। और आई थिंक दिस पैंडेमिक इज अ लाइक ये लर्निंग फेज है हमारा, कि अभी तो लोगों की आंखें खुल जाए कि ये सब रिलीजन में कुछ नहीं रखा है। वी आर गिविंग ब्लड, वी आर डोनेटिंग ब्लड। किसका ब्लड है, क्या है, वी आर कोई कंट्री से ऑक्सीजन आ रहा है, कोई कंट्री से हमको रॉ मटेरियल आ रहा है, कोई मतलब सी एट बैड टाइम वी नीड गुड सपोर्ट, एंड वी हम लोग उसी में हमारी जीत है कि मिलके रहने में। So why not here? Why not in India? India में ही ये सब क्यों? So I really want people to come ahead and join the politics in a good sense. Like अच्छे से भी politics चला सकते। Many countries they are going very well. ये इतना dirty जो होता है हर जगह नहीं होता। तो आई थिंक वो पास्ट का सब स्टॉप करके अभी कुछ नए लेवल पे हमको इंडिया को लेके जाना चाहिए। वी लॉस अवर अब्दुल कलाम सर, हमने जिनको लूज किए, इतने इतने टैलेंटेड पर्सन को, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है हमारे, लाइक जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उनका उद्देश्य यही था कि इंडिया इज नॉट एक जात की कंट्री नहीं, इतने सारे प्रजाति है, सो मेनी रिलीजन्स एंड सो मेनी पीपल आर पॉपुलेटेड कंट्री है। तो उन्होंने वो सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि सबके लिए वो सबके हित में सही हो। अब उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है या तो ये कुछ चीज़ें ऐसा लगा हमको कि गलत हो रही है। तो अगर वही पार्टी वाले, वही लोग अगर समझे कि ये गलत चीज़ है और इसको सही किया जाए तो बेस्ट है। देन वी विल अप्रिशिएट टू ईच एंड एवरी, लाइक वी विल सैल्यूट टू आवर प्राइम मिनिस्टर इफ ही डज एवरीथिंग वेरी वेल। बट इफ इट इज गोइंग इन अ रॉन्ग वे, देन पीपल विल लाइक आपको अप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा, पीपल विल निंदा तो लोग करेंगे आपकी। सो उसके बाद फिर एक कोई कास्ट को बुरा बोलते हैं, तो मैनी थिंग्स लाइक गोइंग सोशली बहुत गलत चीज़ें भी हो रही है। तो वो सब सोचने के बाद मुझे लगा कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे एक चांस लेना चाहिए। इसीलिए मैंने एक ज्वाइन किया, बट वो इतना बड़ा इंटेंशन तो नहीं है मेरा। तो ये छोटे मैंने सोशल एक्टिविटीज़ को ही करने, एंड महिला ब्लॉक में मैंने किया है, इट इज़ लेडीज़ ब्लॉक, बिकॉज आई एम वेरी मच कनेक्टेड विद वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ ज्वाइन करके मैं कुछ और लेडीज़ को आगे बढ़ाने की अगर मेरी कोशिश है, वो अगर कर पाई तो मैंने बोला ना, मैं अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ बेस्ट। बट पॉलिटिक्स इज बिट डर्टी। लोग आपको अच्छा करना भी चाहो तो आपको अच्छा करने ही नहीं देते यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में होती है, जो मैं एक्सपीरियंस जो मैं सीख रही हूँ अभी। सो आई हैव जस्ट जॉइंड इट एंड इट्स माई लर्निंग फेज। सो ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, बट जो भी है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। होप गिव मी सक्सेस। अगर नहीं तो फिर आई विल बैक ऑफ, आई विल नॉट कंटिन्यू, बिकॉज आई हैव सो मेनी थिंग्स एज यू सेड। इतनी सारी चीजें ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है। सो आई, that is my first priority, and I'm doing this for my people, for my Indian brothers and sisters, and so everybody should come ahead. मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कुछ लोगों को जो जिनको लगता है जो कर सकते हैं, प्लीज आगे आओ और अपने देश को बचाओ ये गलत चीजों से। वही मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, एंड सबको वही गाइड करूंगी। Shabana ji, actually as far as I have seen you, you know, on social media, because हम लोग social media पे ही हम लोग मिले थे, so I know you only you know through social media. सीधा मिलना actually due है,
Definitely we will meet up. Yes, sure. But then on social media, you come across as a very, bold and a very brave personality who never actually shies in putting forth your thoughts. कि आप जो आप सोचते हो, आप बोलते हो ऑडियंस को या आपके friends या public को through social media. So what do you think is going to be the output of that? कि सबको इतना bold और brave होना चाहिए on social media, या अपने जो भी thoughts हैं, अपने जो भी वो ख्यालात रखते हैं, that they should have it within themselves so that they can play a safe game, और सबको ऐसे ब्रेव एंड बोल्ड होना चाहिए कि डट के वो अपना बात जो है वो सबके सामने ला सके. सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी एक्चुअली वी डूइंग, बिकॉज you are actually a bold personality, so you will be a better person to answer that question. Thank you so much for that. I believe कि जहाँ आपको लगता है, मैं जैसे आप पर्सनली अगर मेरी बात करना चाहे तो मैं अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखती हूँ, कोई चीज़ अगर गलत हो रही है और मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं, तो मैं एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं सोचती हूँ कि इसको लोगों के सामने लाना ज़रूरी है. क्योंकि देखो, एवरीबडी इज नॉट अवेयर ऑफ एवरीथिंग. हम बाकी लोग सब अपने काम में बिजी है, कुछ कोई अपना काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तो सबको ही नहीं मालूम. अवेयरनेस थोड़ा ज़रूरी होता है. तो मोर ऑफ मैं बोलूँगी कि बोल्ड से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सामने रखते हैं जब लोगों के सामने. कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो कुछ सच्ची बातें आपको लोगों के सामने लानी पड़ती है, अवेयर करना ज़रूरी होता है. तो जहाँ मुझे लगता है कि एक होता है, एक लिमिट होती है कि मैं स्टॉप नहीं कर पाती अपने आप को कि ये चीज़ के बारे में मुझे बोलना चाहिए. जैसे मैंने आपको पहले बोला, वेरी अनस्टॉपेबल. जहाँ मुझे लगता है ये बोलना चाहिए वहाँ मैं बोलती हूँ. कुछ गलत, और वो भी ऐसे मेरे माइंड में नहीं चलता रहता है, मैं देखती हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस आसपास में भी. मुझे लगता है कि यार ऐसी चीज़ें हो रही है, तब मुझे थोड़ा उसका बुरा लगता है. और मुझे ऐसा लगता है सोशल मीडिया इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम मैक्सिमम अपने जो थॉट्स प्रोसेस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं. मे बी इट इज़ रिगार्डिंग लाइक हम वर्क के लिए भी अपना जो मार्केटिंग करते हैं तभी हमारा काम बढ़ता है. तो ये भी उसी तरह का होता है कि सोशल मीडिया हेल्प्स यू इन दैट कि आप कुछ चीज़ें अगर ये किसी को फैमिली अब्यूज, किसी को पर्सनल अब्यूज हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, तो आप एक सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ डालते हैं कि इसका अब्यूज या एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके रूल्स बने हैं, इसके लिए ये रूल्स है, इसके लिए ये लॉज है, तो अगर आप डालोगे तब लोगों को पता चलेगा ना कि हाँ, हम इसमें से निकल सकते हैं, इसका ये रास्ता है. तो जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, लोग को पता नहीं चलेगा. तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है. तो मैं मुझे ऐसा नहीं कि अंदर से मैं गुस्से में रहती हूँ या ऐसा रहता है. लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है नॉल, बट वैसा कुछ नहीं रहता है. मैं अपने जो भी थॉट शेयर करती हूँ, मैं बहुत एकदम काम पोजीशन में, लाइक एकदम ठंडे दिमाग से सोच समझ के डालती हूँ कि ये ज़रूरी है, ये लोगों को जानना समझना, तो ही मैं उसको फॉरवर्ड डालती हूँ. अदरवाइज मैं इतना मोस्टली मैं बिजी रहती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ. जहाँ मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है, इसको करना चाहिए, तो वो मैं अपने विचार लोगों में लेके आती हूँ. बट लोग उसको एक्चुअली हाँ. मेरा एक क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि पीपल एक्चुअली आजकल बहुत भड़क जाते हैं. अपने ही पेज पे हम अपना एक्चुअली हमारा विचार रखते हैं. वी एक्चुअली गिव आवर ओपिनियन एज टू व्हाट वी थिंक. तो वो लोगों को एक्चुअली इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम, वो लोग भड़क जाते हैं. दे कम एंड फाइट विथ यू ऑन द सोशल मीडिया, जैसे कि हमने उनको पर्सनली अटैक कर दिया. if we are if we are saying something against a political party or a person that they like, ऐसे हमारे ऊपर पर्सनल अटैक्स आ जाते हैं. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली. I used to share, once upon a time I used to share a lot of things पॉलिटिक्स के बारे में मेरे खुद के पेज में, ताकि कोई ग्रुप में या कहीं भी नहीं, मेरे खुद के पेज में आई यूज्ड टू शेयर. But then I used to get a lot of people come to fight with me कि ऐसा कैसे डाल सकती हो, ये तुमने क्यों किया है. अरे मेरी मर्जी है, that is what I think. तुम अगर कुछ सोचती हो तो तुम भी बोलो. yeah. तो इसीलिए मैंने पूछा कि एक्चुअली थॉट प्रोसेस कैसे रहने चाहिए. उसके बाद में से मैंने, है ना, मेरा पॉलिटिकल थॉट्स या
मैं पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या मुझे कौन पसंद है या पसंद नहीं वो डालना मैंने बंद कर दिया था बिकॉज यू नो टू मच ऑफ अनवांटेड मतलब अटेंशन एक्चुअली आई वाज गेटिंग. आपके अपने लोग भी नाराज हो जाते हैं और थोड़ा उसमें इशू, हाँ. पर्सनल इश्यूज भी हो जाते हैं सीन. यस. लेकिन उसको अपने तरीके से अगर आप बताओ कि हम आपको थोड़ी बोल रहे हैं, हम हमको जिनको जिनको बोलना है उनको बोल रहे हैं, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? हमको उन तक ये मैसेज पहुंचाना है. लोग पर्सनली ले लेते हैं पर्सनली ले एक्चुअली. लेते हैं, हाँ. तो ये चीज हाँ. आपके एवरी पर्सन की मेंटालिटी पे है. अगर उनकी मेंटालिटी ऐसी, अगर वो सच में उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लिए है, तो दे विल दे रिएक्ट बैक. तो वो भी एक है कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपके लिए है. हम अगर जेन्युइनली लाइक इन जनरल सबके लिए डाल रहे हैं, या हमारा थॉट है, या हम अगर उस स्पेस से गुजर रहे हैं और हमने वो थॉट डाल अपने एक्सप्रेस कर दिया, तो नोबडी शुड लाइक, आपको उसमें इतना ये होने की जरूरत नहीं है. थोड़ा आपको भी समझ के चलना चाहिए. फाइनली वॉट एवर लाइक दिस इज वन पार्ट है. आपको, मैं वही बोल रही हूँ ना, ये सब पॉलिटिक्स एंड ये सब चीज एक तरफ है. लेकिन जब, जैसे मैंने भी एक पोस्ट डाला था कि आपको जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, आपके घर में कुछ हो जाता है, तो सबसे पहले आपको आपके नेबर की जरूरत पड़ती है. फैमिलीज बाद में आती है. तो आपको आपके रिलेशन, आप आर्ग्यू करो, फेयर आर्ग्यू करो, एक फेयर डिबेट आप दे यस. सकते हो, बिकॉज ट्रू. वी आर एजुकेटेड इनफ कि वी शुड. वही मेरा वो, मैं उसी इंटेंशन से डालती हूँ कि आई एम एजुकेटेड इनफ, और मैं अपना थॉट प्रोसेस डाल रही हूँ. शायद किसी यस. को, जिसको ये नहीं मालूम हो, उसकी आंखें खुले. और कुछ लोगों को मालूम हो के भी वो लोग को आंखें नहीं खुलना है, तो उनको हम कुछ नहीं कर सकते. बट ये जरूरी होता है कि आपको अपना एक पॉजिटिव वो रखो. लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, और एक दूसरे को अब्यूज करने की जरूरत नहीं है. इसको एक फेयर डिबेट, एक एजुकेटेड वो डिबेट या आर्ग्यूमेंट, एकदम भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है. मैं कि अगर सामने वाला समझता है, वेल एंड फाइन. नहीं समझता है तो फिर मैं आगे से उनके साथ वो फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करती हूँ. आई प्रीफर रिलेशंस ओवर ऑल दिस थिंग. तो मैं फिर अवॉइड करती हूँ. एंड मैं वो, अगर कोई नाराज हो गया तो ओके, चलो वी वोंट डू दिस, वी विल कीप आवर रिलेशन वेल. तो एक टाइम आता है, ये सब हुआ है मेरे साथ भी. एक टाइम आता है जब उनको काम के लिए जरूरत पड़ी और मैंने हेल्प किया, तो दे देमसेल्फ रियलाइज कि हाँ, इसको मैंने कितना बुरा बोला था, बट फाइनली यही आई मुझे हेल्प करने की. सो आई ऑल्सो बिलीव इन दैट कि वक्त है ना, वक्त एंड हालात इंसान को सारी चीजें क्या बोलते हैं, अपने आप उसको समझ में आ जाता है कौन सही है कौन गलत है, मैंने किसको बुरा बोला, क्या बुरा बोला. तो वो आई प्रीफर गिविंग टाइम. टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन. लाइक टाइम दो आप, तो टाइम के साथ सब अपने आप समझ में आ जाता है लोगों को. अभी भी जो हमारा जैसे जो चल रहा है, काफी सारे बोली ना, ईगो था लोगों में, ये था, अभी सब खत्म हो गया है. अभी लोगों को पता चला है ये जो हालात ऊपर वाले ने जो, शायद ये हमको रियलाइज करने के लिए ही दिया है अल्लाह ने, ये जो पैंडेमिक दिया है कि हम इसमें से वापस जो हमारा पिछड़ा हुआ जो था, हम सब भूल गए थे, वो सब हम फिर से उस पर आए और फिर से हम अच्छे से मिलके रह सकते. शायद उसके लिए कुछ चीजें, मैं बोलती हूँ ना, मैं बुरे में भी अच्छा ही देखती हूँ. तो आई थिंक उसमें भी कुछ आपका अच्छा, अल्लाह का अच्छा इंटेंशन हो, तो वो पॉजिटिव उसमें से लो, और जो भी नेगेटिव है उसको हटा दो. तो बस मिल के रहो. Actually, that's actually a very good point, Shabana ji. Ke, you know, relationships you will have to prefer over, you know, arguments. Yes. मैंने वैसे ही सोच के आई एक्चुअली वेंट बैक टू देम पर्सनली एंड टोल्ड देम हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, somebody else is doing politics, somebody else is earning money और हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए. मुझे तो बट अभी, वी आर मुझे फ्रेंड्स, अगर आप राइट? यकीन नहीं मानोगे, मैं अभी कोई चीज में नहीं भी जाऊँ ना, तो मुझे ड्रैग किया जाता है, बिकॉज आई हैव जॉइंड कांग्रेस. राइट, राइट, राइट. तो ऐसी है, तो आई कैन अंडरस्टैंड. मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, तो तुम लोग मुझे ड्रैग कर लोगे हर आर्ग्यूमेंट में कि मुझे उसका कसूरवार यस. ठहराओगे. तो इट इज लाइक अभी मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है. पहले तो ऐसे जनरली भी हो जाता था. तो आई हैव लाइक, एक टाइम अभी में बट मुझे भी ऐसे ही ड्रैग किया जाता था बिकॉज ऑफ माय यू नो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन. क्योंकि मैं भी एक पार्टी को सपोर्ट करके मैं भी बात करती थी. तो that time I was also dragged like this, even if I was not a part of that conversation, still I was dragged. इसलिए मैंने पॉलिटिक्स सोशल मीडिया पे बात करना ही बंद कर दिया. ओनली वर्क रिलेटेड स्टफ. या it becomes very तो like negative. मतलब पॉलिटिक्स है ही या नेगेटिव ही है नेगेटिव, पॉलिटिक्स. एक तरह नेगेटिव माहौल बन जाता है. या हाँ. तो कहीं एक टाइम पे अगर हमको लगा, तो वी शुड अवॉइड इट. वही क्योंकि यस. हमारे अपने रिलेशंस बेटर अच्छे रहे, ये जरूरी है.
हमको देखो सबसे बड़ी चीज पैसा कमाना है, मिलके रहना है, बिजनेस रिलेशंस भी किसी के साथ खराब नहीं हो, पर्सनल रिलेशंस भी खराब नहीं हो, तो जितना कोशिश करें हम मिलके रहे। बस मैं भी वही देखती हूँ, ज्यादा अगर वो नेगेटिव में हो गया या रॉन्ग उसमें जा रहा है, आई राइट जस्ट स्टॉप इट, आई अवॉइड इट। एंड राइट लेकिन फिर देन अगेन फेसबुक इज लाइक आवर पेज, यू कैन पुट व्हाटएवर लाइक यू वांट, तो वो राइट तुम अवॉइड करो। इफ यू फील बैड यू अवॉइड इट, यू डोंट, यू इग्नोर इट, यू डोंट। एक्चुअली यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, इफ दे टॉकिंग नेगेटिव वी कांट इन 5 मिनट्स और 2 मिनट्स टाइम या एक पोस्ट डाल के हम उनका माइंड चेंज नहीं कर यू हैव सकते. टू टॉक, सो इट्स एक्चुअली नो यूज. कॉल एंड टॉक। वही तो छोड़ दिए इट्स लोगों नो ने, यूज एक्चुअली. वही लोगों ने मिलना जुलना उसमें कॉल पे बात करना छोड़ दिया, और लोग अभी बहुत ज्यादा नेट सेवी हो गए, सारे मैसेजेस के थ्रू, और रिलेशंस उसकी वजह से खराब होते हैं, काफी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, नेट व्हाट्सएप एंड एवरीथिंग इज रियल। तो मैं जहाँ लगे, इट इज फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, जहाँ लगता है आपको कि यहाँ पे फोन करके बात करनी चाहिए, वहाँ आप कॉल करके बात करिए, तो आपको वो समझदारी से सब बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि ये सच में बहुत माहौल बिगड़ गया है ये सब चीजों से। I also like how you said so many people come across some, we discuss now, we come to know all these things are happening, so better we talk on call and मिल हम लोग तो कुछ कुछ दिनों के बाद हम लोग गेट टुगेदर इसलिए करते हैं कि चलो आजकल बहुत फॉर्म में आ गया, देखो पीपल स्टार्टेड डूइंग गेट Yes. टुगेदर, दैट इज अ गुड पार्ट, कि मिलते रहो एक दूसरे से, तो अंदर का जो रहता है, जो भी बैड इमोशंस, वो निकल जाता है एक दूसरे को Yes. मिलने के लिए, जितना आप उसको खींचोगे उतना वो और बढ़ता है, ऐसा है। Yes. एक्चुअली बहुत सारे लोग अब हमारे साथ ये शो देख रहे हैं, तो शुभांगी श्रेकर सेज हाय, विजय लक्ष्मी सेज हाय, बहुत सारे लोगों ने हाय, हार्ट्स हाय और विद्या, थम्स अप हाय भेजा हुआ है. राबिया पटेल का भी है, हाय प्रियंका, हमारे लिए बहुत सारे लोगों ने भेजा हाय हुआ है शिवांगी, एक्चुअली. विजय लक्ष्मी सेज हाय. हाय विजय लक्ष्मी, हाउ आर यू? And Priyanka says hi. Hi Priyanka. Jigna Desai says everything awesome. you like, Rabia Patel says lovely. hello, Yes, I'm there. okay I thought So बस सारे मैसेजेस देख रही थी कि रेस्पॉन्ड करना भी जरूरी है ना, सब लोग हमको हम मैसेज लोग भेज रहे हैं एंड बहुत सारे हार्ट्स भी मिले हैं आपके लिए. तो पीपल आर एक्चुअली वाचिंग द शो, सो दैट इज द एक्चुअली द प्रूफ कि इतने सारे हार्ट्स मिले हैं आपके लिए. थैंक यू सो मच। अच्छा तो या शबाना जी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट? अभी आपने कहा था कि आप महिला स्ट्रेंथन करने में आप बिलीफ रखती हैं, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट? कब जाके यू थिंक अ वुमेन इज एक्चुअली एम्पावर्ड? क्योंकि बहुत सारे लोग बात करते हुए आपने सुना होगा, बहुत सारे जगह वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे ये वर्ड एक्चुअली बहुत यूज हो रहा है. तो what according to you is actual women empowerment? सी एक्चुअली एवरी वुमन इज स्ट्रांग, स्ट्रेंथ अंदर से ऑलरेडी होती है, ऐसे नहीं कि लेकिन एक पॉइंट होता है, एक लाइफ में उनके एक पॉइंट आता है हर वुमन के जब उसको लगता है कि उसकी वो स्ट्रेंथ अभी उसको दिखाना है। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक शेरनी की बात करो, वो ऐसे बैठेगी तो इतनी शांत लगती है, लेकिन जब उसको जागना होता है तब वो जागती है। तो आपको कोई भी लेडी को जब अपने लिए स्टैंड लेके खड़े होना होता है, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट फॉर मी। आप वहीं पर आप जीत जाते हो, वो आपकी फर्स्ट स्टेप होती है। अगर आपको कोई कुछ इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, आप वो सह के बैठ गए, तो आप कभी वो वुमेन एम्पावरमेंट को एक्सपीरियंस नहीं करो। आप वही चीज बोलते हैं अपने अंदर, वुमेन एम्पावरमेंट इज विद इन। अगर हम जब तक हमको जो भी हम सह रहे हैं उसके लिए हम खड़े नहीं हो, आवाज नहीं उठाए, वी डोंट कम अहेड विद इट, टिल दैट वुमेन कैन नेवर बी एम्पावर्ड। सो उसमें आपको आपको खुद को जानना है, आपके अंदर खुद का कितना, आप कितने टैलेंटेड हो, आपको खुद अपने आप को पहचानना ही वुमेन एम्पावरमेंट होता है मेरे हिसाब से। और रही बात जैसे मैं अपना बोलना चाहूंगी कि अगर मैंने बोला ना, काफी लेडीज अभी हम इतना एक्सपीरियंस हो गया है, पहले हमको भी पहले इतना नहीं मालूम था, अभी लाइफ जर्नी से इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो हर कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बहुत इनोसेंट वुमेन भी है दुनिया में जो बहुत कुछ सफर कर रहे होते कुछ को, तो
एक हेल्पिंग हैंड देना, अगर किसी को जरूरत है तो अगर आप उसको हेल्प कर सकते हो, एक हेल्पिंग हैंड देना और उसको आगे बढ़ाना, दैट इज ऑल्सो ए वुमेन एम्पावरमेंट। अभी मेरा अगर ब्यूटी बिजनेस है, मैं अपने ट्रेनिंग बैचेस लेती हूँ, मैंने काफी सारे जो जिनके पास एक फाइनेंशियल जिनको इश्यूज थे उनको मैंने काफी सारी लड़कियों को, गरीब लड़कियों को मैंने फ्री में भी सिखाया है। तो वो लोग ने आज सीख कर अपना खुद का पार्लर खोल के आज कमा रहे हैं। सो दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। आप हर एक घर से हर एक मतलब आप अपना पार्ट प्ले करो। अगर मैं 4 लड़कियों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने में सक्सेसफुल होती हूँ, अगर मैं कामयाब होती हूँ, तो वो भी और 4, इस तरह से आप एक वुमेन एम्पावरमेंट को एनकरेज कर सकते हो। तो दैट इज इट। और ये चीज हमको उनको रियलाइज कराना है। मैंने बोला कुछ कुछ लेडीज खुद रियलाइज करते हैं कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, मुझे करना चाहिए, और फिर मुझे मेहनत करना है, मुझे काम करना है। तो आप घर से बाहर निकलोगे नहीं तो काम कैसे करोगे, आगे कैसे? तो ये आपके अंदर ही, आप अगर डर के रहोगे नहीं, मैं एक औरत हूँ, मैं बाहर कैसे निकलूँ, मुझे इतना दूर ट्रेन से जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। वो स्ट्रेंथ आपके अंदर रहती है, वो आपको उजागर करनी है, स्ट्रेंथ को आपको बाहर लाके आपको करना है। और कोई नहीं कर पाए तो हमको उनको हेल्प करना है। सो दिस वे इट्स अ कनेक्टिव दिस। हर औरत को एक दूसरे को सपोर्ट करके ही चलना होता है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। औरत का जो नारा है, झंडा है, वो तभी आगे बढ़ेगा अगर हम एक दूसरे को डिग्रेड करने के बजाय हम एक दूसरे को हाथ दे और सपोर्ट करें और आगे बढ़े। दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट। Right. That's very nice. That's lovely, actually, the statement that you have given on women empowerment. क्योंकि usually आपको ये सुनने में मिलता है कि women empowerment means बाहर जाके काम करो या boldly कुछ statements दे दो, like that. सबसे बगावत करो, things like that. People think women empowerment is that, but actual women empowerment क्या है वो आपने अभी बताया है हमें। शबाना जी, आप खुद अभी पॉलिटिक्स में हो, तो आज के दौर में व्हाट डू यू थिंक इज द स्कोप फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स, या वुमेन को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, या उनका स्कोप क्या है? बिकॉज पॉलिटिक्स जनरली इज नोन एज अ मैन्स फोर्टे। सो आज के दौर में स्पेशली, आई एम नॉट टॉकिंग जनरली, आज के दौर में यू थिंक वुमेन शुड एक्चुअली ज्वाइन पॉलिटिक्स? व्हाट इज द स्कोप फॉर वुमेन इन पॉलिटिक्स? यस, डेफिनेटली वुमेन शुड जॉइन पॉलिटिक्स, बिकॉज ये आज के दौर की, अगर आप बोल रहे हो तो आज का क्वेश्चन है तो बहुत ताजुब है। क्योंकि आप पास्ट में जाओ तो अपनी ज्योतिबा फुले है, अपने इंदिरा गांधी जी है, ये लोग Yes. भी जब उस दौर में, जब वो उन्होंने इतना कुछ किया था, मदर टेरेसा वाज इन सोशल वर्क, लाइक अगर उस दौर में जब औरतों का बाहर निकलना ही नामुमकिन था, उस दौर में अगर उन्होंने किया, तो आज इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। हाँ, सेकेंडली ये बात अलग है कि इट्स कम्प्लीटली मेन डोमिनेटिंग वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं आपको वो टैकल करना पड़ेगा, वो चीजों से भी गुजरनी पड़ती है अगेन। बट पीपल विल अप्रिशिएट योर पॉजिटिव पार्ट अगर आप राइट हो। मैं अगेन वही बोलना चाह रही हूँ, आप राइट रहोगे तो आप किसी को भी मात दे सकते हो, चाहे वो कोई स्ट्रॉन्ग मैन हो या कोई भी हो। आप राइट स्टेप फॉरवर्ड करोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। सो आई थिंक आपको आपका जज्बा रहना चाहिए और आपको अपने पर बिलीफ रहना चाहिए। तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स इज ऑल्सो, काफी सारे लेडीज है पॉलिटिक्स में। अभी हमारा जो है महिला Yes. अलग ब्लॉक है। आप जो दूसरे ब्लॉक्स में भी काफी महिलाएं जुड़ती है, तो बहुत सारी चीजें उनको भी सहनी पड़ती है, मैंने भी देखी है। लेकिन इट इज लाइक पार्ट ऑफ गेम, लाइक इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये तो हर जगह होता है, लेकिन आपको बैक ऑफ नहीं करना है, आप उससे गिव अप मत कीजिए। इट विल लाइक इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस। आपको धीरे धीरे करके आपको नाम मिलता है, जहाँ मिलना चाहिए वहाँ आपको नाम जरूर मिलता है। अगर आपको पॉलिटिक्स में बढ़ना है तो पॉलिटिक्स में, बिजनेस में भी अगर आप कुछ मर्दों ने आपको झिड़क दिया, अरे ये तू क्या बिजनेस करेगी, और आप उसको हार गए, तो आप हर जगह से हार जाते हो। तो यही हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, तो आप उसमें सक्सेसफुल होते हो। ऐसा तो आई वांट कि many all women should come out for joining politics. बस उनको फैमिली सपोर्ट और सब वो जरूरी है, वो मिलना जरूरी है। दैट इज द मेन Right. थिंग।
So you heard Ms. Shabana talk about women joining politics, ladies. So get set if you really Come need ahead. to change the world. Yes. Yes, if you really need to change the world, if you really need to change that society around you, you will have to take that first step. Don't wait for anybody else to come for your rescue. You go ahead and join the changing system, which is politics, and make that change, make that first step. That is what Ms. Shabana has done. She has joined politics so that she could bring up that change that she wanted to see. So that is what she is also telling us right now. Join politics if you really want to see the change in the society or in your country. So you heard it from her. She is an upcoming politician, so definitely you can take her word for it. Or Shabana ji, before we end the session, I would like to know, you are an entrepreneur, you are into the modeling industry, you are a politician. Itne sare actually you have the facet. Do you ever get any free time? Or if you have free time, what do you actually do in your free time? I'm sure you won't have it, but then if you have it, what do you actually do? Actually, आप क्या करना पसंद I have करेंगे? planned my everyday schedule in this way कि मैं कल मुझे क्या करना है वो आज ही मेरा प्लान हो जाता है, तो मैं वक्त वैसे निकलता है। ऐसे अचानक अगर मैं करने जाऊंगी तो डेफिनेटली मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सो मुझे अभी तो ये रोज इट इज लाइक हैबिट हो गई है, अभी ये तो मेरा एवरीडे सिस्टम में आ गया है कि मुझे ये ऐसे ही करना है, अदरवाइज मैं कर ही नहीं पाती। सो फॉर मी लाइक इन अ वीक कम से कम 2 दिन तो मैं अपने लिए निकालती हूँ कैसे भी करके, बिकॉज दैट इज माई टाइम। एंड फैमिली टाइम भी एक दिन मेरा रहता है। फैमिली टाइम इज लाइक एवरी डे इज अ फैमिली टाइम ओनली, मॉर्निंग इवनिंग। बट कुछ ऐसा वक्त होता है हमको, बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं कुछ, ये तो आई कीप अ वॉच ऑन एवरीथिंग इवन इफ आई एम हियर इन माई वर्किंग एंड माई किड्स आर देयर, बट आई कीप अ वॉच। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं थोड़ा ये लोग डिस्टर्ब हो रहे, क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ तो गड़बड़, तो आई सिट विद देम एंड टॉक। तो फ्री टाइम में मैं मोस्टली अपने बच्चों को टाइम देना चाहती हूँ। म्यूजिक, आई लव म्यूजिक थोड़ा इट इज लाइक स्ट्रेस आपका निकल जाता है म्यूजिक। मेडिटेशन एंड वर्कआउट्स करती हूँ मैं, थोड़ा सा योगा एंड वर्कआउट्स वक्त निकाल के वीक में 2 से 3 बार मैं ट्राई करती हूँ। बहुत मुश्किल से वक्त निकलता है, बट फिर भी मैं बिकॉज उसमें कैसा आपको एम्प्टी स्टमक करना होता है। यहाँ पूरा दिन गुजारने के बाद घर पे जाके पहले भूख लगती है तो खाना खाओ एंड देन उसके बाद खाना खाने के बाद हैवी स्टमक से आप वर्कआउट्स नहीं करते, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। बट आपको सब प्लान करके चलना पड़ता है। तो मैंने अभी तो मुझे आदत ही हो गई है एवरीडे बेसिस पे, बट राइट नाउ लाइक समटाइम्स आई फील वेरी टायर्ड, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ 2-2 3-3 दिन का एक साथ, एंड देन एंजॉय माय थिंग जो भी मुझे करना है उसमें ब्रेक लेके व्हाटएवर यू। शबाना जी, you said you love music. Yes. So कुछ 2 लाइन आप सुनाना चाहेंगी हमारे ऑडियंसेस के लिए? Any of your favorite song? कोई भी आपका फेवरेट सॉन्ग? आई एम नॉट रेडी विद इट। बहुत सारे हैं सॉन्ग्स, तो बहुत सारे हैं। एक सॉन्ग एनीथिंग आपकी चॉइस है। आई एम नॉट ए गुड सिंगर, आई लव टू लिसन म्यूजिक। That's okay, nobody is judging. बस we are just having a friendly chat, that's all. आई डोंट नो द लिरिक्स, मैं लिरिक्स भूल जाती हूँ, दैट इज माय प्रॉब्लम। कोई भी गाना, बस 2 लाइन आप देख के भी गा लो, नो इश्यूज। हाँ हाँ, वही मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर लिरिक्स मिल जाए तो मैं थोड़ा अभी तो मेरा कम हो गया है पैशन सॉन्ग्स म्यूजिक का, मेरा बहुत था, तो बहुत मैंने कम कर दिया, बिकॉज इट्स लाइक विद एज यू आर लाइक वेरी मच, यू बिकम अ रिजर्व्ड पर्सन। आप अपना हॉबीज और वो आपका थोड़ा कम होते जाता है। बस कोई भी गाना 2 लाइन अगर आप सुना देती तो। आई एम रियली नॉट रेडी विद इट। आप बताइए कोई भी सॉन्ग, आप बोलिए, मैं गाती हूँ। मेरे माइंड में आ ही नहीं रहा है सॉन्ग कोई भी नया पुराना, एनीथिंग, any of your favorite song that you actually liked it recently आप सुने हो और you liked it, और जो आपका कोई भी पुराना फेवरेट हो जो आप हमेशा ही गुनगुनाते हो। पुराने सॉन्ग्स मुझे काफी पसंद है। एक लता मंगेशकर के सॉन्ग्स काफी मुझे पसंद है।
for you I'm doing it because आज तक Thank you so much. कभी मैंने सॉन्ग्स का मैं बहुत कम ये सुनती बहुत हूँ, गाती बहुत कम हूँ, but old song, this is I think Lata Mangeshkar's song. I love this song, so I'll sing it. तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता दिल क्यों धड़के रह कर, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों sorry. Thank you so much, Shabana ji. That was so sweet of you, and that's an excellent choice of song, actually. And thank you so much. Lots of love to you. Thank you. Thank you for having, Shabana ji, you there? I've actually lost you. आप हो क्या? All right, that was Shabana Rajapkar for us, who sang actually a beautiful song. The entire episode is actually going to be streaming in the YouTube channel of Ink That Matters. So anytime that you have missed watching this live session, you can actually go back to our YouTube channel and watch the session again. The session actually is full of it's actually a women empowerment session, how a woman can multitask, because Miss Shabana is actually an entrepreneur. She's into the she's connected to the modeling industry, she is a social activist, and also she is an upcoming politician with also a family to take care of. So she's actually a multifaceted personality. So how you can multitask is what you can learn from this session today, and how you can excel in that. Just multitasking is not an issue here. You'll have to excel in each and every field that you do, each and every work that you do. So that is more important. So that is what Ms. Shabana is all about. And that is our takeaway today as to how you can multitask your work and follow your passion. Never leave your passion, never leave your determination is what the lesson that we have got from the session today. So until next time, see you, bye-bye. And today's session, definitely whoever has missed it, please go ahead to the YouTube channel of Ink That Matters and do watch it. Thank you so much.